Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello students, good evening to one and all present here and welcome to another live lecture of Home Revise. So yes, standard 7, are you ready for the lecture? Everyone is from 7th standard. Let's start the quiz. Okay, so are you ready? You know the rules. I'll be counting till 10 और फिर जिसके भी नाम आएंगे उनका नेम यहाँ पे मैं लिखूंगी. Okay? Okay. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. Which chapter first changes physical and chemical? Okay. Start करें. Are you ready? Excited? Excited? Standard 7th? I'm very excited. Very. Okay. All are excited. Cool. Let's start. First question is change like spoiling of milk is a dash change. Okay. अब ऑप्शंस तो आपको पता ही होंगे. फिजिकल, केमिकल. ओके. चेंज लाइक स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क इज अ डैश चेंज. अच्छा ये वो वाला नहीं चेंज बता रहे हैं. ठीक है चलो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Dishita, hi Dishita. Yes, natural change. Okay. Amrapali and 1.2 natural. Tanmay Shinde is like reversible and Roshan is like natural. Swara is like natural. Okay. Mariam is telling man-made change. Change like spoiling of milk is a dash change. Students, tell me confirm answer. Okay, 1 point B, natural change. Let's see if the answer is correct. Very good. Okay, obviously milk जो spoil होता है वो हम लोग purposely करते हैं क्या? Man-made change है क्या? वो नहीं रखेंगे तो भी ऐसे बहुत टाइम तक कुछ गिर गया उसमें तो it will get spoiled. Okay, it is a natural change. It is not reversible change. Reversible मतलब वो वापस से अपन उसको milk बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. Okay. Let's go on the next question. Very good. Whoever told natural, clap for yourself. Okay. Let's proceed on the next question, which is ripening of a fruit is a dash change. Okay. Fast, slow या medium. Very simple. चलो your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So let's see the answers. 2B. Roshan, question आने से पहले आपने आंसर कैसे किया? Your name is Divya. Okay, hi Divya. Yashraj, very good. Yashraj, very good. Tanushri and fast. Kirti, are you turning fast? 2.2. Okay. Yes, Yashraj, you are first. First one to answer. Okay, Sanjeevni is here. She is telling it is a slow change. तो yes, it is a slow change. आपको पता है फ्रूट्स राइप जल्दी से नहीं हो जाते. ठीक है, जैसे हमारे कैरी से आम बनने के लिए ऐसा हो जाता है कि एक दिन में हो जा रहा है 2 दिन में नहीं. It takes time for ripening of fruits. Okay. Sorry, slow. Yes, Mariam. If the properties of the original substance remain the same, okay, properties of the original substance remain the same, then this type of change is called dash change. चलो जल्दी ना बताओ फटाफट. ठीक है, अगर ओरिजिनल सब्सटेंस वैसे ही रहा तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल बोलेंगे, नेचुरल बोलेंगे या केमिकल बोलेंगे. ओके, मुझे ऐसा आंसर चाहिए. 3.A या 3.B या 3.C ऐसा बोलना है आपको. ओके स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स सी. Nana Sahib, hi. Mariam said natural. Tanmay Shinde and Netra. है ना नेत्रा? सही नाम लिया मैंने पहली बार आपका. Tanushree, okay. Natural. Roshan Pawar is telling physical. If the properties of the original substance remains the change, then it is a which change? कोई A बोल रहा है और कोई B बोल रहा है. देखते हैं कौन सा है. A है
यस, किसने ए बोला? इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज में क्या होता है पता है आपको? वो ओरिजिनल सब्सटेंस पूरा इट अंडरगोज अ चेंज, ठीक है, वो रिवर्सिबल, मतलब वो वापस से हम लोग नहीं ला सकते ओरिजिनल चीजें। बट फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि समझो मैं ये कर रही हूँ, आइस को मेल्ट करके वाटर बना रही हूँ, तो फिर क्या हो जाता है, वो ओरिजिनल थी वो वाटर ही है ना, ठीक है, और उसको मैं वापस से वाटर से आइस भी बना सकती हूँ। तो ये फिजिकल प्रोसेस था, केमिकल प्रोसेस नहीं था। ओके, तो यस, किसने सबसे पहले मुझे बी बोला है, मुझे देखने दो। सबसे पहला राइट आंसर इज फ्रॉम मरियम, वेरी गुड। तन्मय, यशराज थोड़ा सा चूक गए, वेरी गुड नेत्रा। एंड अच्छा, आप लोग ने बी ही बोला था। हाय, हाय ऑल्सो, बाय ऑल्सो, वाई हाय ऑल्सो, बाय ऑल्सो। एंड दिव्या, ओके दिव्या, इट इज अ फिजिकल चेंज। अच्छा, एक सेकेंड, आपने बी बोला, एक्चुअली आंसर ए है, मैं भी क्या कर रही हूँ। ए किसने बोला था, मुझे वो चेक करना है। जिसने अभी मैंने जिसका नाम लिया, हम लोगों ने रॉन्ग आंसर किया है। यशराज ने राइट आंसर किया है, शेखर ने राइट आंसर किया है, और रोशन पवार ने राइट आंसर किया है। फिर से शेखर, समझा आप लोग को? ठीक है, इट इज नॉट बी, इट इज ए। The change that can occur in forward and reverse direction again and again is called a dash change. Tell me, acidic change, periodic change या repetitive change? No ma'am, B नहीं आता है, आता है, A आता है। Yes, sorry मैंने गलत बोला, आप सही थे। हाय मैम, हेलो नेहा, चलो चलो आंसर करो। हाय मैम, सॉरी फॉर लेट। दिव्या बोल रही है रिवर्सिबल, बट यहाँ पे रिवर्सिबल का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो सब लोग बोल रहे हो सी। तनुश्री, मरियम, तन्मय, रोशन, चैताली, यशराज। ओके, आप लोग बोल रहे हो रेपिटेटिव। ओके, लेट्स सी। नो। ओके, द ओनली राइट आंसर इज फ्रॉम स्वरा। स्वरा, पीरियोडिक। यस, सो इट इज पीरियोडिक चेंज, जो अगेन एंड अगेन होता है, जो अपने आप को एक प्रॉपर पीरियड में रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। ओके, यस, whoever is present here, have you given it a like students? लाइक करो लेक्चर को। ओके, आई एम राइट। तनुश्री, आपने क्या आंसर बोला था? ओके, तो आंसर इज व्हाट स्टूडेंट्स? पीरियोडिक। नाउ रिमेंबर, अभी आगे से आप लोग गलती नहीं करोगे। चलो फिफ्थ का देखते हैं। द चेंजेस इन विच टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। 5 का ए, तन्मय शिंदे, यू आर वेरी फास्ट, एंड अंकुर इज टेलिंग अनप्रेडिक्टेबल। ओके, दिव्या इज टेलिंग नॉन पीरियोडिक, एंड रोशन एंड एवरीवन। ओके, सब लोग का मोस्टली ए आ रहा है, तो वेरी गुड, इट इज नॉन पीरियोडिक। लिसन, द चेंजेस इन विच टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड इज पीरियोडिक। ओके, जिसमें प्रॉपर टाइम इंटरवल में आता है वो पीरियोडिक, और जो प्रॉपर टाइम इंटरवल में नहीं होता है वो है नॉन पीरियोडिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस धर्मेंद्र, यू आर राइट। यस स्वरा, वेरी गुड। एंड Jyoti, I mean sorry, Sanjeevni, your name is Sanjeevni, yes. In the process of dash, iron articles are given a thin coat of zinc to prevent corrosion. ये कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, जिसमें जिंक की कोटिंग दिया जाता है। आपको पता है आयरन क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है। तो उसके ऊपर अगर हम लोग एक ऐसे मेटल की कोटिंग करते हैं जो रस्ट नहीं होता है, जिसकी जिंक, तो उससे करोजन प्रिवेंट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आयोडाइजेशन? देखते हैं। Corrosion नहीं, to prevent corrosion. Let me complete my question. This process is called iodization, galvanization या oxidization. Ma'am, you have not tell my name. I told your name. हाँ, वो लेक्चर के लिए लेट हो गया था, इसके लिए कस्तूरी आपका नेम था उसमें। ओके, दिव्या is telling iodization. Kalpana and Swara are telling B. You, वैशाली, I mean तनुश्री, तनुश्री चलिए बी। चलो देखते हैं, वेरी गुड। तो आप लोग आयोडाइजेशन क्यों बोल रहे हो स्टूडेंट्स? द आंसर इज गैल्वेनाइजेशन। नो, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन प्रकाश। नाउ यू विल रिमेंबर स्टूडेंट्स,
एक प्रोसेस जिसमें हम आयन आर्टिकल्स को जिंक की कोटिंग देते हैं, इस प्रोसेस को भी कॉल एज गैल्वेनाइजेशन. ओके, यस यशराज, इट इज बी. नो छाया, ट्रू और फॉल्स? Evaporation is a physical change. Yes or no, students? True or false? Tell me. Evaporation पता है ना? Evaporation एक physical change है, हाँ या नहीं? Okay. Let's wait for your answers. ऐसा करो 1 point T या फिर 1 point F, ऐसे करो. Okay? I hope whoever is present here, you have given it a like also, students. Okay, like भी करते जाओ because everything depends on your like. आगे के lectures and everything, quizzes, everything depend on your likes. Okay. Okay, I got the answer. Very good. सब लोग ने बोला है T, तो देखते हैं किसी ने भी false नहीं बोला है ना? मरियम कुरैशी के अलावा. क्या हो गया मरियम आपको? आप अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करके आए हो? Evaporation is a physical change, okay? Baking bread is a harmful change. True or false? Baking bread एक harmful change है क्या? Ma'am, I have liked. Thank you, Chaya. False. Divya is telling false. Baking bread is a harmful. Yes, like this session. Yes, because my future, what we can say, lectures are dependent on your likes only, students. Okay? False, false, false. Okay. Swara, Maryam, Dharmendra, Ishika, Tanmay, Kirti, and Ankur. Very, very good. Okay? False. Why it should be harmful? अच्छी बात है ना? मूड ठीक नहीं है, इसलिए आप रॉन्ग आंसर कर रहे हो. दरिशा, क्या नाम है आपका? अनस्टॉपेबल गर्ल गेमर. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज. ट्रू और फॉल्स? चलो जल्दी थर्ड वाला बताओ. कोई ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं बोलेगा, सब पॉइंट लिखो वहां पे. 3 पॉइंट ट्रू या फिर 3 पॉइंट फॉल्स ऐसे लिखो. ऑर्डर समथिंग देन. 3 पॉइंट F बोला तनिष्का चौहान एंड धर्मेंद्र एंड दिव्या. आज मुझे बहुत न्यू स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो अच्छे आंसर्स कर रहे हैं. जिसका भी मैंने तीनों का नाम लिया है ना, ये मुझे न्यू स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो अच्छा आंसर कर रहे हैं ये टाइम. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज. पर आप क्या बोल रहे हो? आप लोग फॉल्स बोल रहे हो. कल्पना इज टेलिंग ट्रू, बाकी सब बोल रहे फॉल्स. यस. ओके. The objects become durable due to corrosion. Durable मतलब लंबा चलता है, ठीक है, बहुत लंबा चलता है. तो ऑब्जेक्ट्स लंबा चलता है ड्यू टू corrosion. True or false? दिशिका, yes दिशिका. कौन करने नहीं दे रहे हैं? कीर्ति. ओके, जल्दी जल्दी. 4 point what? अयो, my name is Dishita. Okay. 4 point F या 4 point T? आधे लोग T बोल रहे हैं, आधे लोग F बोल रहे हैं. Objects become durable due to corrosion. देखते किसका आंसर राइट है. आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट्स, क्योंकि करोजन की वजह से चीजें खराब हो जाती है, तो वो लंबा कैसे चल सकती है? ड्यूरेबल नहीं हो सकती वो. ओके, तो इसका फॉल्स किसने बोला है? लेट मी सी. दिव्या, धर्मेंद्र. मैंने बोला ना आज बहुत न्यू स्टूडेंट्स है जो अच्छा आंसर कर रहे हैं. रोशन पवार एंड अर्चना. मैम आई एम फर्स्ट. कीर्ति, यस आई सॉ योर फॉल्स बट यू डिडंट मेंशन कि फोर्थ का आंसर कर रहे हैं या थर्ड का आंसर कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया. यू गेव मेनी राइट आंसर्स आल्सो. यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A number of different criteria can be applied to same change. एक ही चेंज में अपन 3-4 अलग अलग क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं क्या? ट्रू और फॉल्स? आंसर क्वेश्चन 5th. ओके, जंग बहुत देर तक लगा रहता है.
जंग बहुत देर तक लगा रहता है, उससे चीजें ज्यादा चलती है कि जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है ना, समझा अभी आपको? ठीक है। फिफ्थ, ट्रू, अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड टू द सेम चेंज। मरियम कुरैशी सबसे पहले मुझे अंकुर ने बोला, फिर मरियम ने, फिर तन्मय, देन तनिष्का, देन नेत्रा, स्वरा, धर्मेंद्र, इशिका। ट्रू, यस, वेरी गुड। जो भी राइट आंसर कर रहा है लाइक भी कर रहे हैं। The process of coating copper and brass articles with tin is called galvanization. True or false? मरियम सेकंड आया मुझे आपका, फर्स्ट मुझे अंकुर का आया। ठीक है, जिसका आंसर आता है मैं वैसे ही रीड आउट करूंगी। Process of coating copper and brass articles with tin is called galvanization. सिक्स्थ का false. Ma'am and my name. What happened, अंकुर? आपका नाम लिया ना सबसे पहले, आपने ही बोला। Netra is telling false, Ishika is telling false, Sarth is telling true, true. Okay, देखते हैं क्या है। आंसर इज false। मैंने अभी गैल्वेनाइजेशन का पहले आपको बताया था। ठीक है, आयरन आर्टिकल्स विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, yes, it is false. Now I said first. Yes, Mariam. Answer in one word. What are the changes called which are not useful to us? बहुत सिंपल है, मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ फटाफट सबके आंसर आ जाएंगे। मैम टेक माय नेम, तनुश्री। मैं सबका नेम नहीं ले सकती ना, इसलिए रुक जाती हूँ। बी, बहुत सिंपल है ना। ऑब्वियसली जो यूजफुल नहीं रहेगी वो हार्मफुल रहेगी। सिंपल, isn't it? Yes, very good everyone. What are the changes called which occur in a forward and reverse direction again and again? इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगी क्योंकि ये हो चुका है, अब भी हुआ था ये फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आंसर इन वन वर्ड में भी सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर कर दोगे। यस और नो स्टूडेंट्स? वेटिंग फॉर आंसर्स। मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। What are the changes called? आपने एक मिनट मरियम, आपने 2.a कैसे बोला जब मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको? और नेत्रा आप 2.2 कैसे बोले जब मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको? आप लोग कहीं से कॉपी कर रहे हो? रेपिटेटिव तो रॉन्ग आंसर था, याद है? इशिका, धर्मेंद्र एंड तनिष्का। लेट्स सी इसमें से कौन सा है। बताओ बताओ, कॉपी तो नहीं कर रहे हो आप? कीर्ति, कीर्ति मैम फास्ट चेंजेस। नो कीर्ति, इसमें से बताओ चलो। रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? यस, इट इज रिवर्सिबल। जो रिवर्स डायरेक्शन में अगेन एंड अगेन होगा, पीरियोडिक भी बोल सकते हैं और रिवर्सिबल भी, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऑप्शन में पीरियोडिक है तो पीरियोडिक बोलोगे, रिवर्सिबल रहेगा तो रिवर्सिबल बोलोगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके। Which material is used to coat an iron article to prevent corrosion? ये इसका भी ऑप्शन नहीं दे सकती क्योंकि ये हो चुका है। He is copying from Home Revise app. Is it? No, no. Reversible. चलो इसका बोलो, इसका भी मैं ऑप्शन नहीं दे सकती हूँ। ओके धर्मेंद्र, आज धर्मेंद्र एकदम फुल इसमें। प्रोसेस नहीं बोल रही हूँ मैं, मटेरियल पूछ रही हूँ, प्रोसेस नहीं पूछ रही हूँ। आपने थर्ड जिंक कैसे बोला? आपको कैसा लगा थर्ड ऑप्शन अच्छा है? ऐसा 3 का जिंक बोला आपने। अच्छा अच्छा। Process is called galvanization and material is zinc, students. Okay.
Now remember this. What among the following is an organic substance that is affected by termites or fungus? Termites पता है ना आप लोगों को, लकड़ी पे termites लग जाते हैं, फंगस लग जाता है, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन सी ऑर्गेनिक चीज है जो टर्माइट्स और फंगस, मैंने क्वेश्चन में आंसर दे दिया था, इफ यू अगर आप ध्यान देते हो मेरे वर्ड्स पे तो। यस, जिंक इट वाज। इसका आंसर करो। नो कॉपर, नो स्टेनलेस स्टील। यस, तन्मय। मुझे अभी नाम किसका लिखना पड़ेगा बताया आपको? तन्मय का और धर्मेंद्र का और आई थिंक सो इशिका ऑल्सो। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड। वुड ऐसी चीज है जिसको फंगस और ये लग सकता है, ओके। टर्माइट्स। Which among the following is a chemical change? चलो, I think so this is the last question. Hi Parth, why are you late today? Fifth. हाँ मरियम, पर आपने थोड़े थोड़े रॉन्ग आंसर किए ना, इसलिए बस आपका नाम नहीं लिखा है, क्योंकि आई थिंक आपको भूख लगी है। कीर्ति। फिफ्थ बी, फोटोसिंथेसिस। मरियम फिर से इवेपोरेशन बोल रही है। देखा मरियम, हुआ ना आपका रॉन्ग, इसके लिए मैं आपको वो कर रही हूँ। दिव्या, इवेपोरेशन या फोटोसिंथेसिस? अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सॉरी फॉर लेट, नो प्रॉब्लम, अभी तो क्या एक और चैप्टर बाकी है। आंसर इज photosynthesis. Students, evaporation is a physical process. Earth revolving, obviously it is not a physical ये chemical change. photosynthesis में क्या होता है? लाइट एनर्जी यूज करके कुछ फूड बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, केमिकल्स बन रहे हैं, ओके, दैट इज अ केमिकल चेंज। मैम बाय मिस्टेक हुआ। अच्छा ठीक है मैम, इतना क्या थड़क गए आप? 5.2 बी, यस तनुश्री, यू आर राइट। And who was right? Neha Jangir and Maryam Qureshi and Ankur and Netra and Dharmendra. Okay, very good. I think so. That's all. Test over. Yes. तो आपको ब्रेक चाहिए या नहीं? आप लोग नहीं बोल रहे, आई नो। कौन सा करना है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। देख लो ये जो लड़की मुझे इतने दिन से बोली थी, राजनंदिनी, वेर इज शी? आई डोंट नो। She wanted me to take this chapter, elements, compounds and mixtures. और अभी ले रही हूँ तो she is not there. Okay, students, tell me you want a break or you want me to continue? Yes, कीर्ति, कितने बार आपका नाम लूँ? Oops, I came in 7th class. You are in which standard, Parth? No, you don't want me to give a break? नो, सब नो ही करेंगे। अच्छा देख तो लो, इसमें मुझे धर्मेंद्र, तन्मय, इशिका और मरियम कंटिन्यूस आंसर्स देते गए, ओके। तन्मय शिंदे, मरियम, धर्मेंद्र, इशिका, ओके मैम, कंटिन्यू, ओके, नो ब्रेक, कंटिन्यू, ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं। एंड दिव्या ऑल्सो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रुको पहले तो रेडी हो जाओ, ठीक है। हाउस द जोश, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक लेसन हो गया था अभी हम लोगों को हो गया बस कंटाला आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे चाहिए अभी भी उतना ही एंथुसियाज्म रहे, उतना ही एंथुसियाज्म दिखाओगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो वो, या फिर थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा सा मस्ती कर ले, ठीक है। मैम प्लीज टेक माय नेम। अरे ये लड़की एक ही चीज बोलती है, कीर्ति 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 कीर्ति, बस। इफ यू वांट ब्रेक मैम यू कैन टेक। नहीं मुझे चलेगा, चलो मैं आप लोग से बातें करती हूँ तब तक। हाय, हाय मैम ऐसा बोलो, हाय सर बोलते हैं ना उसमें हाय मैम। फुल नेम लू, अभी कीर्ति को चाहिए मैं उसका फुल नेम लू, कीर्ति हंगे। मैम वेरी डीप जोश, अरे वाह मैम, मेरा नाम लो ना।
अरे आप लोगों को क्या होता है नाम मेरे से? तनुश्री। देखो, जाओ फटाफट अपना गूगल अकाउंट बना के आओ, ठीक है? चलो, आप लोगों को कुछ बोलना है मुझसे, मैं कभी आप लोग से पूछती नहीं हूँ ना ये बात, ठीक है? आज थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको कुछ मैसेज देना है या फिर कुछ बोलना है होम डिवाइस को, या फिर हमें कुछ भी फीडबैक दो, चलो अपनी तरफ से। हाय मैम, हाय क्यों बोल रहे हो आप लोग अचानक से? आप लोग कब से तो थे लेक्चर में। अरे हाय क्यों बोला आप लोग ने? मैंने पूछा आप लोग को। अरे हाय क्यों बोल रहे हैं सब लोग? मुझे हंसी आ रही है। चलो चलो, मेरे को फीडबैक दो। मैंने हाय बोलने बोला आप लोग को। क्या बोल रहा आप? हाय मैम, माय फेवरेट मैम इज यू। ओके, थैंक यू। नेत्रा है ना? नेत्रा नाम है ना आपका? मैं होम डिवाइस को थैंक्स कहना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है ना मरियम को ना अवार्ड मिलता है क्या, कि आप अवार्ड शो में आते हैं और वो लोग बोलते हैं ना, मैं इसको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, इसको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, वैसे कर रही है मरियम, है ना? Home Revise app is best for studying. How sweet. Ma'am, you are really best. Thank you, Vibhuti. You are a great teacher ever. You are the best. अरे वाह मैम, your teaching is very nice. Thank you स्वरा। मैम होम रिवाइज चालू नहीं होता है, कुछ करो ना। अरे कितने बार आपको बोला है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करो, ठीक है? वर्ल्ड बेस्ट टीचर, ईस्टर बेस्ट होम रिवाइज एंड यू इज द बेस्ट। और इतना अच्छा फीडबैक आ गया। करियर होल्डर गोल। ओके, अच्छा बताओ मुझे, आप लोग को क्या, मैम टेक माय नेम जया, मुझे बताओ आप लोग को क्या बनना है फ्यूचर में? ठीक है, किसी को कुछ इंटरेस्टिंग बनना है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ऐसे? हाँ चलो, डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनते हैं, कोई ऐसा है जो एकदम डिफरेंट है? मैम यू आर सो गुड टीचर। थैंक यू कीर्ति एंड विभूति। होम डिवाइस इज द बेस्ट ऐप। तो जिसने भी अब तक होम डिवाइस डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखो आपको कितने रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, सामने इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूज करते हैं और उसको बेस्ट बोल रहे हैं। इट इज द बेस्ट, वेरी गुड लर्निंग ऐप इट इज। यस राइट, ओके, यस यस। और मेरा फायदा भी है, देखो मेरी तारीफ करने का फायदा भी आप लोग के पास। आप लोग अगर ऐप डाउनलोड करते हो, ठीक है, परचेज ऑप्शन तो आप लोग को पता ही है ना। प्लीज सब लोग लाइक करो। सदफ मैम इज ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग। हाय, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है ऐसा लग रहा है। मुझे लॉयर बनना है मैम। ओके, हाउ यू नो डांसर? अच्छा, डांसर बनना है। Ma'am, is it quiz today? Yes, quiz is going on. Yes, this is how you can purchase the app, students. You can get the app from Play Store. Okay, home device डाल दो, आपको ऐप मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएट करो, नेम और मोबाइल नंबर दे दो, एटलीस्ट 5 डेज का ट्रायल तो ले लो, डरो मत, ठीक है? 5 डेज के ट्रायल का पैसा नहीं रखता है आप लोग को। ओटीपी डालो, आपका लोकेशन बोर्ड मीडियम डालो, ओके, और रेफर्ड बाय में आप मेरा नाम डाल सकते हो, विच इज SADAF। अगर आप मेरा नाम डालते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है ऑन द स्पॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंटेड रेट्स चालू है, आपको पता है ना, अभी न्यू स्टैंडर्ड आने वाला है। जैसे अभी जो भी यहाँ पे है 7th स्टैंडर्ड वाले, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो, है ना? तो 8th स्टैंडर्ड के लिए आप खरीद सकते हो, या फिर 8th 9th 10th खरीदो, आप लोग एक साथ खरीदोगे ना, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 20% डिस्काउंट अगर मेरा नाम डालते हो तो। ओके, फिर आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लो और आपको होम रिवाइज ऐप मिल जाएगा। देन एंजॉय लर्निंग। देखो टाइम टेबल भी आ गया, जो कि आज हो गया सैटरडे का, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके मैम, थैंक यू जया फॉर होम रिवाइज ऐप। अंकुर थैंक यू, बहुत सारे हार्ट भेजे उसने। मैम मुझे पायलट बनना है। ओके, पायलट की स्पेलिंग PILOT होता है, ओके। थैंक यू सर। यस यस, इट इज ऑलरेडी 5:30, ठीक है, मैं 5:30 का वेट कर रही थी। चलो स्टार्ट करें हम लोग। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे। मास्टर शेफ बनना है, वाह। चलो चलो, अब सब शू शू शू। मैम आपको डायबिटीज नहीं होती। बहुत स्वीट बोल रहे हो आप, डायबिटीज हो जाएगी। एकदम चुप, अभी सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है? सदफ मैम एक्सप्लेन्स वेरी नाइस, हेल्पफुल एंड नाइस टीचर, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके स्टार्ट करें। एन ऑब्जेक्ट इज मेड, चलो अभी एकदम चुप, सब लोग पढ़ाई। ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ compound matter या substance, okay, and the time starts now. 10 9 8 7 6
5, 4, 3, 2, 1, 0। शेखर। ओके, तो सबसे पहला आंसर मुझे तनिष्का से आया है, एंड देन स्वरा, वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड विभूति एंड तनिष्का। ओके, लेट्स सी इफ योर आंसर इज करेक्ट। अंकुर इज टेलिंग सब्सटेंस, आप लोग बोल रहे मैटर। ओके, वेरी गुड। An object is made up of matter. Okay, and what is matter? Matter is something that occupies a space. कोई भी चीज जो जगह ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है, मास यानी वेट, कुछ भी वेट होता है उसका, और वो एक प्लेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। और सारे ऑब्जेक्ट्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? सो whoever told matter, clap for yourself. Very good. जिसने भी बी बोला है या फिर मैटर बोला है। ओके, let's go on the next question. Matter made of only one constituent, ठीक है, is called, here are the options. Okay, matter made of only one constituent, सिर्फ उसमें एक टाइप का सब्सटेंस रहेगा। जैसे कार्बन है तो सिर्फ कार्बन ही रहेगा उसके अंदर, कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा एलिमेंट या एटम नहीं रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस, एलिमेंट या एलॉय। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं 5 तक ही काउंट डाउन दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, मरियम इज टेलिंग अलॉय। मरियम, मुझे बहुत रॉन्ग आंसर आ रहे हैं आपसे, जाके पढ़ाई करके आओ। तन्मय इज टेलिंग सब्सटेंस, वैशाली इज टेलिंग एलिमेंट, नेत्रा इज टेलिंग सब्सटेंस। ओ माय गॉड, सो मेनी मिक्स्ड आंसर्स आई एम गेटिंग। क्या कंसिडर क्या करूं मैं? चलो बताओ। चलो देखो। ओके मैम, मुझे IIT करना है। ओके, एक मिनट, अभी मैं ना आपसे पूछने वाली हूँ 2 मिनट में कि आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या, और देखो आप। कैन यू हियर मी नाउ? आई एम नॉट यूजिंग हेडफोन्स, जस्ट टेल मी इफ यू कैन हियर मी, तो फिर मैं ऐसे ही बात करूंगी आप लोग से। ओके, ज्यादा आंसर मुझे एलिमेंट्स आ रहे हैं, विच इज रॉन्ग। फिर क्या बोला आपने? सब्सटेंस। ओके, देखते हैं। सब्सटेंस। ओके, मैटर मेड ऑफ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड सब्सटेंस। पहले बोला आवाज आ रही है? यस और नो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन यू हियर मी क्लियरली स्टूडेंट्स, और यू वांट मी टू वेयर इट अगेन? ऑडिबल? ओके ओके, कूल। तो लेट्स नॉट यूज दिस। यस, वैशाली एंड ऑल। ओके, तो इट इज सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ शुगर। ओके, तो शुगर किससे बना है? ऑब्वियसली सारा शुगर से ही बना है, तो शुगर एक सब्सटेंस हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऐसे कोई भी चीज जो प्योरली वही चीज से बनी होगी, वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज अ सब्सटेंस। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आई सेड फर्स्ट। ओके अंकुर, ब्रास, स्टील, 21 कैरेट गोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? चलो, मिक्सचर्स, कंपाउंड या एलॉय। ओके, हाँ बना दो यार। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दिन कितने टाइम बाद लेक्चर में आप आए हो? माय गॉड, कुछ ज्यादा ही बिजी पर्सन है। कौन है ये लव यू करने वाला? निकाल दो इसको लेक्चर से। यू पीपल आर टेलिंग अलॉय, ब्रास, स्टील, ये सब क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, क्या है? 3B साल्ट, आप बोल रहे हो कंपाउंड है। मरियम बोल रही है मिक्सचर। विभूति, आप अलॉय बोल रहे हो। देखते हैं। तो आंसर, राइट आंसर किसका था? विभूति का। वेरी गुड विभूति। यू नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स नेम इज आल्सो विभूति। एंड किसने सी बोला? मुझे देखने दो। नेहा जांगिर एंड नेत्रा, सिर्फ ये लोग के लिए। एंड धर्मेंद्र इज ऑलवेज राइट। अरे आई वाज डूइंग मैथ्स। ओके, ठीक है। तो अलॉय पता है क्या होता है? 2 या 3 मेटल्स का मिक्सचर होता है अलॉय। ओके, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, यू नो। डैश इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स। चलो, इसमें से क्या करेंगे तो इम्प्योर लिक्विड्स प्योर हो जाएंगे? चलो बताओ मुझे।
And yes, students, 38 likes. I hope it will go soon for 40. Okay, only 2 likes. जल्दी आओ और ये करो. स्नैप चेक करो. देखती हूँ. ओके जल्दी पहले पढ़ाई कर लो, बाद में स्नैप भेजना. एलिमेंट्स. ओके. 4A इवेपोरेशन. प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स के लिए इवेपोरेशन करते हैं. Okay, you people are telling distillation. Someone is telling chromatography. This is telling chromatography. Neha and everyone. Okay, ज्यादा मुझे C आ रहा है. धर्मेंद्र का आंसर देखते हैं and it is distillation. मैंने शायद कल या परसों मेरे लेक्चर में distillation का मतलब बताया था. आप ना उसके अंदर क्रूड कंपाउंड डाल सकते हो. क्रूड मतलब मिक्सचर, ठीक है, या फिर इम्प्योर कोई भी चीज, तो ना वो प्रॉपर प्योर होके निकलती है बाहर. ठीक है, एक प्योरीफाई होता है. ओके, एक सेपरेट भी होता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. ऑलवेज रिमेंबर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए. मैं सबके आंसर्स पढ़ रही हूँ. आप लोग ये मत बोलना कि मैम मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, मेरा आंसर नहीं पढ़ रहे. मैं सबके आंसर एक साथ 40 लोग के आंसर्स तो नहीं पढ़ सकती हूँ ना, इसलिए. ओके, डैश आर शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड टू रिफर एन एलिमेंट. एक एलिमेंट के लिए जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं उसको हम नेम बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं या नोटेशंस बोलते हैं. ओके. Yes, I was right. Very good, Vibhuti. Shilpa Verma, Shekhar. Thanks. Welcome. Ma'am, 40 likes. Yay. Yes. 41 हो गए. 5B, 52 symbols. नेत्रा, names क्यों बोल रहे हो? कल्पना, इशिका. सिंबल्स. यस, जैसे कि देखो एलिमेंट कार्बन हो गया, ठीक है, तो कार्बन एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? सी. ठीक है, बोरॉन के लिए बी. तो वो सब हम क्या बोलते हैं? उसको सिंबल्स बोलते हैं, नेम नहीं. पूरा नेम नहीं लिखते हम लोग एलिमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ फ्री स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. मतलब आपको पता है ऑक्सीजन ऐसे सिर्फ ओ नहीं रहता है. कैसा रहता है फिर? वो कितने ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक फ्री स्टेट बनता है? चलो ये बताओ, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी. ओके. Mariam seems to be too happy. Symbols. Yes, Sarth. Yes, Jaya. Clap for yourself. Dash atoms of oxygen combine to form a free state oxygen. मैं गलत आंसर दे रहा हूं. तो पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? 6.3 6.B. 3 बोल रहे हो विभूति, सार, धर्मेंद्र बोल रहे हैं बी. 3. O3. आर यू श्योर? स्टूडेंट्स, O3 कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, चलो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ फ्री स्टेट. ओके, 2 ऑक्सीजन एक साथ आते हैं तो क्या बनता है? O2. और जब हम लोग कहीं भी O लिखते हैं तो हम लोग कभी O या O3 नहीं लिखते, O2 ही लिखते हैं. उसका फ्री स्टेट ऑक्सीजन का O2 है. ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 होता है ना. तो इट इज 2 ऑक्सीजन. ओके, 2 ऑक्सीजन जब साथ में आते हैं तो वो लोग फ्री स्टेट रहते हैं, वरना वो हमेशा किसी न किसी के साथ कंबाइन करने के लिए भागेंगे. ओके. सिंबल ऑफ टंगस्टन, इसका बता दो. चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मुझे पता है आप लोग कर लोगे. जिसने पढ़ाई किया है उसको कर लेगा. यस, इट इज O2. यू आर राइट तनुश्री. यस. ओके, तो सिंबल ऑफ टंगस्टन. टंगस्टन पता है आप लोग को क्या होता है? हमारे बल्ब है ना, बल्ब के अंदर जो रहता है टंगस्टन. ओके. नो प्राज्वल. V. 7th one. U. Jaya and Ankur. साठ, इशिका. V बोल रहे आप लोग. स्वरा. C. धर्मेंद्र भी C बोल रहा है. तो वेरी गुड. तो किसका राइट आंसर था पता है? धर्मेंद्र का, स्वरा का. V नहीं है, W है. बताती हूँ क्यों. क्योंकि उसका जर्मन नेम है वोल्फ्राम. क्या है? वोल्फ्राम. और W वाला वोल्फ्राम, ठीक है, V वाला नहीं. तो इसलिए उसका सिंबल W से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके.
इज दैट अंडरस्टूड? याद रहेगा आपको उसका नेम क्या है, वोल्फ्रैम है। ओके, इसलिए उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं टंगस्टन को, अब याद रखना। द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, केरोसिन पता है ना आप लोगों को, केरोसिन और वाटर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं? नो प्राज्वल, इट इज नॉट वी, इट इज W। तोरशा पत्रा। Prajwal, don't spam, I have to remove you from the lecture. किसको बोल रहा है सचिन? प्राज्वल आपको लेक्चर से निकलना है। A, B, separating funnel. Tanmay also said. Ishika also said, but Jaya is telling distillation. Ishika is telling winnowing. धर्मेंद्र इज टेलिंग ओके। देखते हैं, केरोसिन और वाटर को हम लोग सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। डिस्टिलेशन एकदम ऐसी इम्प्योर मिक्सचर के लिए वो, ये क्या केरोसिन और वाटर इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम लोग सेपरेटिंग फनल डाल के। ओके, डैश इज एडेड टू फूड फॉर्म हार्मफुल मिक्सचर्स। आप समझा ना आप लोग को? क्या हम लोग फूड में डालोगे तो हार्मफुल मिक्सचर बनेगा? वाटर, अडल्टरेंस या कार्बन डाइऑक्साइड? कल ही पढ़ा। ओके, नहीं, केरोसिन और वाटर इजीली सेपरेट हो सकता है सेपरेटिंग फनल के लिए, तो इसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यानी कि डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, डैश इज एडेड टू फूड फॉर्म्स हार्मफुल मिक्सचर। 9C कार्बन डाइऑक्साइड, शेखर is telling water, Tanushree is telling adulterants, Ishika is telling adulterants, Tanishka is telling carbon dioxide, Zardin is telling carbon dioxide. Students, what happened to you? It is adulterants. पता है आपको फूड का अडल्टरेशन होता है, आप जाके सर्च करो व्हाट इज अडल्टरेशन ऑफ फूड। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी ऐसी हार्मफुल चीजें मिक्स कर देते हैं फूड के साथ। ठीक है, वाटर मिक्स करेंगे तो वो हार्मफुल थोड़ी ना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फूड में कैसे मिक्स करेंगे? इट इज अ गैस। ओके, अडल्टेरेंट्स डालते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि मिल्क में शैम्पू मिक्स करते हैं आजकल, एक अडल्टेरेंट हो गया वो। ओके, one molecule of dash is made of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. ये तो सबको मालूम है। ठीक है, I expect a very perfect right answer for this. And Tanushree was right for the last question. Yes, Tanushree, I was going to take your name. Ma'am, can remove from this class please because in my device is not there. Ma'am, can remove me from the class please because in my device it is not there. What? I was absent from the class yesterday. Okay. मंडे को सब लोग प्रेजेंट रहेंगे ना? मंडे को मेरा लेक्चर होगा तब। 10.3 Netra is telling carbon. What? One molecule of dash is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. Yes, Vibhuti. वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ओके, ट्रू और फॉल्स नहीं करते हम लोग, आंसर इन 1 सेंटेंस करते हैं, आंसर इन 1 वर्ड। What is the substance called whose molecules are exactly alike like atoms? ठीक है, वो मॉलिक्यूल भी बन जाता है तो वो वही सेम एटम से बना होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं या मिक्सचर बोलते हैं? नो शेखर, आंसर इज वाटर। ओके, तनुश्री यू आर द विनर बस, एंड तन्मय शिंदे। नेत्रा 1 element, Ankur is telling compound. Yes, Vibhuti, you are very smart, हाँ? देखते हैं what is the answer. Answer is element. Okay, element में जो atoms रहते हैं उसके molecules में भी वही atom रहता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, उसका सब्सटेंस अगर कुछ बनता है मॉलिक्यूल्स तो वो भी कार्बन रहेगा, तो दैट इज एलिमेंट। ओके,
दोनों में सेम एटम्स रहेंगे कार्बन के. यस विभूति. नेत्रा. Which is the smallest particle of a compound? I am not the winner, मैम. नेत्रा का एक तो आंसर रॉन्ग हुआ था ना आपका, इसलिए. चलो इसका आंसर करो जल्दी जल्दी. Which is the smallest particle of a compound? Fast, I want to see that. जल्दी जल्दी answers. जल्दी जल्दी. Come. 2 molecule. Smallest particle of a compound is molecule. Fast. Archana. Dharmendra is telling atom. Netra is telling atom. Okay, let's see if the answer is atom. No. Compound का सबसे छोटा particle is, सब C बोल रहे, सब atom बोल रहे. Ankur is telling molecule. Okay, तो give a big round of applause for Ankur. Tanushri, what happened? Ankur is right. Atom किसके लिए पता है? Element का smallest particle. Okay, compound का smallest particle molecule है. Okay. What are two groups in which elements are classified? Elements को कौन से दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? चलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या सॉल्युबल इनसॉल्युबल, या मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. टेल मी. यस, क्लैप फॉर देम. यस, इवन यू आर राइट. जल्दी जल्दी जल्दी. About to end. Lecture is about to end. Okay, only 5 minutes more. 3C. Mixtures and compound, and Vaishali is telling metals and non-metals. Ishika is telling mixtures and compounds. Dharmendra is telling metal and non-metal. मतलब आधे लोग ये बोल रहे हैं, आधे लोग वो बोल रहे हैं. चलो पहला करके देखते हैं. आंसर इज मेटल्स एंड नॉन-मेटल स्टूडेंट्स. एलिमेंट्स या फिर मेटल्स हो सकते हैं या फिर नॉन-मेटल्स हो सकते हैं. पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे आगे. ओके. खदीजा मुनीफा. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इज दैट अंडरस्टूड? एलिमेंट्स मेटल हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल हो सकते हैं. ओके. वोल्फ्रैम. देखो मैंने अभी, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगी आप लोगों को, मैंने अभी सिखाया लेक्चर में, मतलब अभी क्विज में ही आपको इसका आंसर दे दिया था. वोल्फ्रैम इज द जर्मन नेम ऑफ विच एलिमेंट? आई विल नॉट गिव यू द ऑप्शन, आई नो यू विल डू इट. ओके. Come on, come on. I have given you the answer in this lecture itself. Yes, Dharmendra, you are right. Now no one is going to copy him. अभी ऐसा बोल दूँ तो सब कॉपी करेंगे. मैम प्रीति मैम को बोलो कंफर्म करने. She is not there today. Yes, Tanmay Shinde. Very good. मैंने ये लेक्चर में बताया है. It is what? It is टंगस्टन. वेरी गुड. तो जो बिना ऑप्शंस के आंसर दिए जैसे कि धर्मेंद्र, इशिका, तनिष्का, उनके लिए बहुत बड़ा क्लैप. बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल डू वी यूज स्टरर फॉर मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम योगर्ट? ठीक है, स्टर करके हम लोग बटर मिल्क बना सकते हैं योगर्ट से. पता है ना आप लोग को. छाछ फ्रॉम व्हाट? दही. छाछ फ्रॉम दही. कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इवेपोरेशन पे, कंडेंसेशन या सेंट्रिफिकेशन? स्वप्निल मोरे. W. वोल्फ्रैम. Yes. 5th C. Tanmay is telling centrifugation. Ankur is telling condensation. Swapnil More is telling centrifugation. Swapnil, don't spam. Seriously. Dharmendra is telling condensation. स्वप्निल, एक और बार आपने सी बोला तो आपको लेक्चर से निकाल दिया जाएगा. सॉरी. देखते आंसर क्या है. मैं बताऊं आप लोग को. इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन स्टूडेंट्स. स्टरर लेके अगर मैं ऐसा मिक्स करती हूँ तो उससे क्या हो जाएगा? ऐसे पार्टिकल्स दूर जाएंगे, हेवी पार्टिकल्स, और बीच में क्या आ जाएगा? छाछ आ जाएगा. ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, 2 लेयर बन जाएगा. इवेपोरेशन में तो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाती है ना. इवेपोरेशन में इवेपोरेट हो जाता है. कंडेंसेशन इज नॉट दैट. ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा अगर मैं बटर मिल्क और योगर्ट को अलग करती हूँ. विच प्रिंसिपल? सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके. Next question. Where does the chromatography is used? Okay. Wait a second.
Where does chromatography is used? What happens, Smita? Why are you laughing there? Where does the chromatography is used? Pharmaceutical science, farming or cooking? चलो जल्दी. I am right. This is equal to hand wash. Okay, that is not a clap. Who is the winner? Wait. Timing for Monday is 4 o'clock only. Okay, be there at 4, but press the bell icon. 6A. Where does the chromatography used? Pharmaceutical science. Yes, you know what is chromatography? उसमें ना एक मिक्सचर रहता है छोटा सा, हम लोग एक्सपोर्टिंग करते हैं और वो अलग अलग हो जाता है. उसमें मालूम पड़ता है, समझो शुगर का मिक्सचर है तो पता चलता है उसमें कौन से शुगर प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली फार्मिंग में क्या काम है उसका, कुकिंग में क्या काम है उसका. फार्मास्यूटिकल साइंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्प होती है उससे. ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? प्रोटीन्स को अलग कर सकते हैं, शुगर्स को अलग कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी. Okay, so whoever told chromatography, clap for yourselves. Next question. Using which method can we separate the mixture of salt and water? Salt and water के mixture को कैसे करेंगे? बताओ. I know. मैम मैं नहीं आऊंगी. Your exams are there. Best of luck. 7th आंसर करो. माय आंसर इज करेक्ट मैम. यस कल्पना, आपने सी बोला था ना. यस, वेरी गुड कल्पना. 7B, तन्मय शिंदे is telling which method can be used to separate salt and water? Distillation. Filtration. किसका आंसर दूं? विभूति का आंसर दूं फिल्ट्रेशन, या नेत्रा का आंसर दूं डिस्टिलेशन, या स्वरा का आंसर दूं डिस्टिलेशन? ओके, ज्यादा आप लोग क्या बोल रहे हो? बी बोल रहे हो. वेरी गुड. इट इज व्हाट? डिस्टिलेशन. देखो मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर एक बार मिक्स हो गए तो ऐसा नॉर्मली हम लोग उसको फिल्टर करके थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि सॉल्ट ऊपर रह जाएगा वाटर नीचे आ जाएगा. ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, इसलिए डिस्टिलेशन इज यूज्ड. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? आई थिंक सो दिस वाज द लास्ट. नो, वन मोर लास्ट क्वेश्चन. Which scientist stated that, last question, okay students, literally last question of today. Which scientist stated that atoms cannot be destroyed and cannot be created or divided into smaller particles? कौन सा साइंटिस्ट ने ये बोला था हमें? Okay, Dalton, Democritus और Chadwick. Come on, fast. This is the last question and I hope everyone who is present here, you have given it a like, students. Before leaving, I want everyone's like and whoever have not subscribed yet, subscribe करो जल्दी जल्दी. ठीक है, जल्दी जल्दी, वरना मैं मंडे से नहीं दूंगी आपके लेक्चर. मैंने किसी का नाम अभी नहीं लिखा है, सभी आंसर कर दे. 8A, तन्मय शिंदे का नाम ले सकती हूँ मैं, जिसका जल्दी आंसर आ रहा है. Ishika, 8A. Dalton, should I go with Ishika, Swara and Vibhuti? Very good. So it was Dalton who suggested that atoms cannot be destroyed or made. Okay. So give it a big clap for not only 1-2 students but everyone who was continuously there from start till the end of the lecture. Very good. I know आप लोग ये lecture attend करोगे, I mean ये test solve करोगे, आपका at least 80% इधर ही हो जाएगा पढ़ाई. ठीक है, ऐसे हर चैप्टर करोगे तो सभी हो जाएगा इधर बैठे बैठे. तो 1 hour में हम लोग मस्ती करते करते हमारी पढ़ाई भी हो रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. ठीक है, तो जो भी न्यू है, जिसने मेरे हमारे होम डिवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है, होम डिवाइस को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो. मंडे को मैं आपको टाइम टेबल देने वाली पूरे वीक का. ठीक है, उसमें देख लेना आपका स्टैंडर्ड का लेक्चर कब होने वाला है. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ. ओके, घर पे ही रहो, बाहर मत जाओ. ओनली गो आउट व्हेन इट इज नेसेसरी. बाहर का मत खाओ. ठीक है, बाय. यस आती हो लाइक. ओके, तनुश्री आप विनर हो, बस आप विनर हो. बाय, टेक केयर. एंड विभूति आप